اب بات کریں گے کوٹ ادو کی، جہاں پر قبضہ مافیا نے جنازگاہ اور پارک کا تعمیراتی کام رکوا دیا، جس پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کوٹ ادو میں قبضہ مافیا نے جنازہ گاہ اور پارک کا تعمیراتی کام رکوا دیا، جس پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ اس پر بات کریں گے تیمور اطہر سے۔ تیمور اطہر، بتائیے گا یہ قابضین کیا رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ قابضین اور انتظامیہ کا موقف کیا ہے؟ میں موجود ہوں منڈی مویشی میں۔ 2 کروڑ روپے کی لاگت سے ایم این اور ایم پی اے کی جانب سے اس جگہ پر پارک اور جنازہ گاہ بنایا جا رہا ہے، جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اس وقت کام جاری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے اہل علاقہ جو ہیں وہ نجائز قابضین کے خلاف سراپا احتجاج ہے کہ یہاں پہ جو نجائز قابضین ہیں انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا اور اب مزید بھی راستے کے لیے جگہ لی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پارک اور جو جنازہ گاہ اس کی جگہ کم ہو رہی ہے۔ میرے سے یہاں کے کچھ اہل علاقہ موجود ہیں جو سراپا احتجاج جن سے جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا، پارک اور جنازہ گاہ تحفہ دیا گیا، کام تو جاری ہے، لیکن اب مزید گلی کا متنازع راستہ جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو بن رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور، جیسا آپ کو پتہ ہے، آپ یہیں کے مقیم ہیں اور ساری صورتحال کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے ایم این اے کا، ایم پی اے کا، جنہوں نے اس بحران کی کیفیت میں اس علاقے کی محرومی تھی، ریکوائرمنٹ تھی، جنازہ گاہ نہیں تھی، انہوں نے ایک تحفہ دیا اور اچھا اقدام ہے، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں یہ ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اور انتظامیہ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ آلریڈی یہاں پہ قابضین ہیں جو سرکاری اراضی پہ پہلے سے قابض ہیں، انہوں نے یہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ کی جگہ ہے وہ تھوڑی سی کم ہے اور مزید اس کو کم کرنے کے لیے کسی بھی سورس میں یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جو قابضین ہیں، دوسری گلی وہ 18 فٹ کی جس میں کمیٹی کی انتظامیہ اور ان کو نشاندہی کر کے یہ راستہ آپ کو دوسرا ایکسیس دے رہے ہیں، 18 فٹ کی گلی، جو یہ منظور نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے اور پارک کی جو جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ پارک اور جنازہ گاہ تحفہ دیا گیا تھا، آپ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ مسئلہ سر جی یہ ہے، یہاں پہ جو نجائز قابضین ہیں آلریڈی ان کے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، آلریڈی پہلے سے ہی ان کے گھر سے ایک تقریباً 16 فٹ کی گلی گزرتی ہے، جس کے ان کے دروازے بھی اسی سائڈ پہ کھلتے ہیں اور ان کی آمد و رفت بھی اسی سائڈ سے ہے۔ یہ ابھی یہ جو دوسری سائڈ ہے یہ اپنا پارک کی ہے، وہ لوگ ادھر سے بھی ایک گلی مانگنا چاہتے تھے کہ ادھر سے بھی ہمیں گلی مل جائے تاکہ ہمارے گھروں کو دو طرف سے گلی کی سہولت میسر ہو۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہماری جو پارک ہے اس کا تقریباً 3 سے 4 کنال رقبہ کم ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آلریڈی ان کا ادھر سے راستہ ہے، ادھر سے ان کی گلی ہے، یہ بالکل آلریڈی پختہ گلی ہونے کے باوجود مزید راستہ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پارک اور جنازہ گاہ کی جو جگہ ہے وہ کم ہو جائے جا رہا ہے۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ تیمور اطہر، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام میں بوگس انٹریاں، جنوبی پنجاب کے 3 ڈپٹی کمشنرز نے چیف سیکرٹری کو غلط ڈیٹا فراہم کر دیا۔ چیف سیکرٹری کا اجلاس کے دوران غلط ڈیٹا فیڈ کرنے پر اظہار برہمی، ڈی سی بہاولپور عرفان کاٹیا، ڈی سی سرگودا نائکا باقر پر اظہار ناراضگی اور ڈی سی خانیوال ظہیر عباس شرازی بھی اظہار ناراضگی کرتے دکھائی دیے۔ ان اسلامی خدمت آپ کی دہلیز کا غلط ڈیٹا فیڈ کیا گیا تھا، جہاں پر چیف سیکرٹری کی اضلاع میں کمشنر کو از خود معاملات دیکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بات کریں گے کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، چیف سیکرٹری پنجاب نے 4 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، جن میں ڈپٹی کمشنر باولپور، ڈپٹی کمشنر سرگودا، ڈپٹی کمشنر خانیوال اور ڈپٹی کمشنر ٹوبا کو سرزنش کیا ہے، اظہار ناپسندی کیا ہے۔ ان 4 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کا اجلاس کے دوران چیف سیکرٹری پنجاب کو جعلی اور فیک ڈیٹا جو ہے وہ مہیا کیا تھا، جس کا پی آئی ٹی بی بورڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فیک ڈیٹا پیش کیا جا رہا ہے، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب ناراض ہو گئے اور انہوں نے ڈسپلے یہ شو کیا ان 4 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو، اور ان 4 اضلاع کے جو کمشنر ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے ویریفائی کرے اور اجلاس میں ڈیٹا ویریفائی کرنے کے بعد کمشنر جو ہے ذمہ دار ہوگا، کمشنر جو ہے پیش کرے، جبکہ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر شاد احمد اور کمشنر لاہور کیپٹن سر محمد عثمان کی چیف سیکرٹری پنجاب نے تعریف کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت پنجاب کے حوالے سے بوگس انٹریاں، جنوبی پنجاب کے 3 ڈپٹی کمشنرز نے چیف سیکرٹری کو غلط ڈیٹا فراہم کیا۔ چیف سیکرٹری کا اجلاس کے دوران غلط ڈیٹا فیڈ کرنے پر اظہار برہمی اور ڈی سی بہاولپور عرفان کاٹیا، ڈی سی سرگودا نائلہ پاکر پر اظہار ناراضی، ڈی سی خانیوال ظہیر عباس شرازی پر بھی ناراضگی کا اظہار، جبکہ ان اضلاع میں خدمت آپ کی دہلیز کا غلط ڈیٹا فیڈ کیا گیا تھا۔ چیف سیکرٹری کی ان اضلاع میں کمشنرز کو از خود معاملات دیکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری کی کمشنر
डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद के काम की खिदमत भी की गई है। आपको बताएं कि खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम में बोगस एंट्रियां जनूबी पंजाब के 3 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को गलत डाटा फराहम किया। चीफ सेक्रेटरी के इजलास के दौरान गलत डाटा फीड करने पर इजहार बरहमी। डीसी बहावलपुर इरफान काठिया, डीसी सरगोदा नाइला बाकिर पर इजहार नाराजगी किया और डीसी खानेवाल जहीर अब्बास शरासी पर भी नाराज हुए। इन असला में खिदमत आपकी दहलीज का गलत डाटा फीड किया था। चीफ सेक्रेटरी की इन असला में कमिश्नर्स को आज खुद मामला देखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी की कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद के काम की तारीफ। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी की इन असला में कमिश्नर्स को आज खुद मामला देखने की हिदायत। इन असला में खिदमत आपकी दहलीज का गलत डाटा फीड किया गया। डीसी खानेवाल जहीर अब्बास शरासी पर नाराजगी का इजहार किया। इसके अलावा डीसी बहावलपुर इरफान काठिया और डीसी सरगोदा नाइला बाकिर पर भी खूब इजहार बरहमी किया। चीफ सेक्रेटरी का इजलास के दौरान गलत डाटा फीड करने पर इजहार बरहमी। जनूबी पंजाब के 3 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को गलत डाटा जो है फीड करके दिया और डीसी खानेवाल जहीर अब्बास शरासी पर इजहार नाराजगी किया। इसके अलावा डीसी बहावलपुर इरफान काठिया, डीसी सरगोदा नाइला बाकिर पर भी इजहार नाराजगी किया। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम में बोगस एंट्रियां हुई। जनूबी पंजाब के 3 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरीज को गलत डाटा फराहम किया। चीफ सेक्रेटरी का इजलास के दौरान गलत डाटा फीड करने पर इजहार नाराजगी। डीसी बहावलपुर इरफान काठिया, डीसी सरगोदा नाइला बाकिर पर इजहार नाराजगी और डीसी खानेवाल जहीर अब्बास शरासी पर भी इजहार नाराजगी। इन इस्लाम में खिदमत आपकी दहलीज का गलत डेटा फीड किया गया था। चीफ सेक्रेटरी की इन इस्लामिक कमिश्नर्स को खुद मामला देखने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी की कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद के काम की तारीफ भी की गई है। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम में बोगस एंट्रियां हुई हैं। जनूबी पंजाब के 3 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को गलत डेटा फराहम किया। चीफ सेक्रेटरी का इजलास के दौरान गलत डेटा फीड करने पर इजहार बरहमी और डीसी बहावलपुर इरफान काठिया, डीसी सरगोदा नाइला बाकिर पर इजहार नाराजगी, जबकि डीसी खानेवाल जहीर अब्बास शरासी पर भी नाराजगी का इजहार किया गया है। इन इजला में खिदमत आपकी दहलीज का गलत डेटा फीड किया गया था। चीफ सेक्रेटरी की इन इजला में कमिश्नर्स को आज खुद मामला देखने की हिदायत भी की गई है। बुज़दार हुकूमत का सीपैक मंसूबों ज़राअत की पायदार तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला की हिदायत पर कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पॉलिसी को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत भी की गई है। चीनी सरमायाकारों को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अराजी दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने शिरकत की। इजलास में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए पॉलिसी का जायजा लिया गया। मुशीर डॉक्टर सलमान शाह, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शिरकत की। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात सेक्रेटरी सनत ने शिरकत की। इसके अलावा सेक्रेटरी ज़राअत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ने शिरकत की। चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मियां काशिफ और सदर फैसलाबाद चैम्बर और मुतालिका हुकाम भी इजलास में शरीक थे। दूसरी जानिब बहावलपुर में ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन को खत्म हुए कई रोज गुजर गए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर का कहना है कि अभी तक वैक्सीन मुयस्सर नहीं, आगे का कोई पता नहीं कि कब तक आएगी। इसी पर बात करेंगे अतहर लाशारी से। अतहर, बताइएगा। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं जो सऊदी अरबिया जाने के लिए परेशान हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही, उसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर अली डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर में साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, सेंटर्स के बाहर खासतौर पर चौक सराकी का जो आपका सेंटर है वहाँ पर लंबी लाइनें हैं उन लोगों की जो सऊदी अरबिया में मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। वैक्सीन का उन्हें कोई नहीं बता रहा। सिचुएशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, ये आज से पहले भी आई थी, उस वक्त इसको लोग कोई लगवा नहीं रहे थे। उसके बाद क्योंकि ये वैक्सीन हमारे पास ख़त्म हुई, उसके बाद फिर हाजियों के लिए या जो वीज़ा होल्डर के लिए हमारे पास आई थी 1500 डोजेज। वो जो डोज आई थी वो 2 दिन में हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद क्योंकि मजीद हमें एस्ट्राजेनेका नहीं मिली और वो इन प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह ताला हमारे पास पहुंच जाएगी। पिछले दिनों थोड़ी सी शार्टेज भी रही थी, तो उसके बाद अब जो साइनोवैक है वो हमारे पास 16,000
800 डोजेज कल पहुंची हैं और वो सिलसिला हमारा वैक्सीनेशन का जारी है। तो ये इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएगी, क्योंकि लोग इसके ऊपर क्योंकि लोग दूर दूर से आ रहे हैं ट्रेवल करके, कोई आपके पास टाइम लाइन है कि कब तक आ सकेगी? आपकी कम्युनिकेशन चल रही होगी विफाक के साथ या सूबे के साथ? नहीं, सूबे के साथ कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो जो ही हमें इतला करेंगे तो फौरन हम वैक्सीन वहाँ से लेने चले जाएंगे। इसके अलावा सेंटर के बाहर हमने वो एक बैनर भी अब ऐसा करा दिया है कि जब भी इसकी अवेलेबिलिटी होगी फिर आप तशरीफ लाएं। तो ये अभी तक हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं मिला कि ये कब आएगी। अभी तक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को ही टाइम फ्रेम नहीं मिला कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कब आएगी, कब हाजियों को लगेगी। और हाजी सिर्फ हाजी नहीं, ऐसे पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं, उनके वीज़े और अकामे की तारीख जो है वो ख़त्म हो रही है और उनके लिए जो वैक्सीन है वो कब आएगी अभी तक डिस्ट्रिक्ट को नहीं पता। और हाजी जो सऊदी अरेबिया जाने के लिए जो शहरी हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, अब आपको बताएं कि अलीपुर में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत गरीब नादार खवातीन में रकूम की तरसील का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे अली हसन से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। उस टाइम मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे एहसास किफालत के तहत यहाँ पे लेडीज़ में रकम तकसीम की जा रही है और यहाँ पे ये भी देखने में आ रहा है कि जो रिटेलर हजरात हैं वो 1000 और 500 रुपये उनसे काट रहे हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन हसन मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जान लेता हूँ कि भाई ये रिटेलर इस तरह के ये काम कर रहे हैं, इस हवाले से आपने क्या कार्रवाई की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाई स्कूल अलीपुर में एहसास किफालत प्रोग्राम हमने सेंटर कायम किया है, जहाँ पे ख़वातीन के लिए कैश तकसीम का एक अमल जारी है, जिसमें इतला मिली थी कि यहाँ पे रिटेलर्स गैर कानूनी तौर पे कटौतियाँ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मुखबरी करवाई है और यहाँ पे 3 रिटेलर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस तरह की कटौती के अंदर इन्वॉल्व थे, जिनमें से 2 को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है और इसमें से एक रिटेलर मौके से फरार हो गया। तो इस कार्रवाई का मकसद यही है कि यहाँ पे ख़वातीन को भी एजुकेट करें कि वो अगर कोई बंदा यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे कटौती करता है तो फौरी तौर पर मेरे ऑफिस में इतला करें। और इसके अलावा रिटेलर्स को भी सख्ती से तंबीह की गई है कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अब ये जो 3 रिटेलर हैं इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपने जाना है असिस्टेंट कमिश्नर महबूब हसन का यही कहना था कि ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली हसन हमारे साथ मौजूद थे। मुजफ्फरगढ़ के गुंजानाबाद इलाके झंक मोड़ चौक से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों को खूबसूरत बनाने का सिलसिला जारी और इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ की अहम शाहराहों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ का जो मसरूफ तरीन चौक है झंग मोड़ चौक, वहाँ से तजावुजात का खात्मा करने के बाद एक खूबसूरत किस्म की वहाँ पर वॉल पेंटिंग जो बना दी गई है और इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से कर दिया गया। DC साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएगा कि ये बेसिकली ये शहर की खूबसूरती में इजाफे का और वॉल पेंटिंग का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो एक डायरेक्शन दी थी कि शहरों को खूबसूरत करें, क्लीन एंड ग्रीन के बाद अब खिदमत आपकी दहलीज पर, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिस सिलसिले में हमने शहर को खूबसूरत करने का वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक हमने एक मंसूबा बनाया था। और उसी सिलसिले में आपने ये देखा होगा कि जिस तरह हमने तमाम चौकों के ऊपर खूबसूरत वॉल्स बनाई हैं, यहाँ का कल्चर डिपिक्ट किया है, यहाँ को तफरीह मुहैया की है लोगों को, उसी सिलसिले में ये एक झंग मोड़ पर भी जो एक वॉल बनाई गई है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी। और ये गवर्नमेंट की जो ये काविश है कि हम लोगों को एक तफरीह भी मुहैया करें, अच्छी एनवायरनमेंट भी मुहैया करें, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी बिल्कुल, बेसिकली मकसद यही है कि ठीक है आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते हैं कि मुल्तान के 30 साला एक ऐसे नौजवान भी हैं जो 1 मन गंदुम अपने दांतों से उठा लेते हैं। मजहर ने भारतीय पहलवानों को भी चैलेंज कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे सरदार अली जो मजहर के साथ मौजूद हैं। जी सरदार, बताइएगा क्या मजहर के इरादे हैं? जी बिल्कुल, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मुल्तान के एक ऐसे नौजवान से जो अपने दांतों की मदद से जो है 40 किलो से भी ज्यादा की वजन वाली बोरी जो है उसको उठा लेता है। वो नौजवान इस वक्त ये कारनामा करने भी जा रहा है। मैं आपको दिखाता चलूं, ये मजहर नामी नौजवान है 35 साल, जो दांतों की मदद से, आप देखकर एक दफा हैरत में जरूर मुब्तला हुए होंगे, जिस चीज को आप अपने दोनों बाजों की ताकत से नहीं उठा सकते, मजहर ने उसको अपने दांतों से उठा लिया। उनसे ही मजीद बात करते हैं। मजहर भाई, क्या ऐसी चीज खाते हैं कि इतने आराम से अपने दांतों की मदद से इतना वजन उठा लिया आपने? रोटी खाते हैं, मछली खाते हैं, और कोई चीज नहीं।
अच्छा, ये सिर्फ रोटी खाने के बाद जो है आपके दांतों में इतनी ताकत आ गई है? कितने दांत हैं? 32 की बजाय कहीं 64 दांत तो नहीं है आपके? नहीं, 32 नहीं, हाल ही टूटे हैं 28 दांत। अच्छा, बिल्कुल, अभी इनके कुछ दांत टूटे भी हुए हैं। अच्छा, हमें जरा अपने दांत तो दिखाएं। दांतों में ऐसी कमाल के ये दांत हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं कि मुकम्मल 32 दांत भी नहीं है। ये कुछ दांत जो टूट गए हैं, कहीं ये बोरियां उठाने की वजह से तो नहीं टूटे? नहीं, कीड़ा लग गया है। अच्छा, मतलब ये दांत वो कह रहे हैं कि कीड़ा लग गया था, मतलब बोरी उठाने से नहीं टूटे। मजहर भाई से मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, भारत को सुनने में आ रहा है कि आप चैलेंज करने जा रहे हैं कि अगर आप 40 किलो उठा लेंगे तो फिर क्या कहेंगे? पूरी इंडिया को चैलेंज है और 1.5 मन वजन उठा लूंगा। अच्छा, मतलब अगर आप 40 किलो का वजन कह रहे हैं, वो 20 किलो का उठाएं तो आप 40, और अगर आप वो 40 का उठाएंगे तो आप 80 किलो का वजन उठा लेंगे? जी हाँ, 80 किलो का पूरे इंडिया को चैलेंज है। मतलब भारत का कोई भी पहलवान आपके सामने आ जाए, आप उसको जेर कर देंगे? हाँ जी। जी बिल्कुल, मजहर का कहना है कि पहलवानों को भी ये जेर कर देंगे, और इनके दांतों की ताकत को देखकर आप भी जरूर हैरत में मुब्तला हुए होंगे। इलाका मकीन जो हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और वो मजहर के इस ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार, हमारे साथ मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां पर महकमा तालीम की मुजरिमाना गफलत, बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। स्कूल पढ़ने आने वाले बच्चों को असातिज़ा ने पढ़ाने की बजाय काम पर लगा दिया। चौबारा चक 368 में बच्चे सरकारी स्कूल की तामीर और मुरम्मत में मसरूफ हैं। बच्चों को 15 फीट ऊंची दीवार पर बगैर हिफाजती इकदाम के चढ़ा दिया गया। सीमेंट, बजरी, ईंटें उठाते वर्दी में मलबूस बच्चे, महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल के निशान। बच्चों से काम लिए जाने पर सीईओ तालीम शराफत अली बसरा का नोटिस। सीईओ तालीम ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वाक़े में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, लिया में महकमा तालीम की मुजरिमाना गफलत, बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई।